Good morning, children. Today we will continue with our lesson. Yesterday we have completed first 6 paragraphs and today we will continue 7th paragraph. I have discussed yesterday that a dog born and he didn't like and satisfy with his life. He didn't like to wander away in all direction and also be fearful to wild animals. So one day he decided to serve the animal who is stronger on the earth. I have discussed yesterday that first he went to wolf. Then leaving the wolf he went to bear, and after bear he went to lion. So we will continue with 7th paragraph. So concentrate here. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. You can see this picture. In this picture, the bear looked out from behind the tree. जो बियर था वो ट्री के पीछे से जो काउस का हर्ड था उनको देख रहा है. काउस क्या कर रही थी? The cows were moving loudly and running in panic in all direction. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. जो बियर था वो डॉग से बताता है कि तुझे पता है मैं यहाँ पे क्यों छुपा हुआ हूँ? क्योंकि ये जो पार्ट है फॉरेस्ट का उसमें लायंस रूल करते हैं. द लायन हु इज ही? So the dog asked the bear कि lion वो कौन है? Don't you know? He is the strongest beast on earth. The bear told the dog that the lions were the strongest beast on the earth. ये जो अर्थ है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल जो है वो लायंस है. Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर जो डॉग है बच्चों, वो डॉग बियर से क्या बोलता है? I will say goodbye to you. Now मैं तुम्हें गुड बाय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा मास्टर चाहिए who is stronger than anyone on earth, जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. Number 8. And off the dog went to ask the lion to be his master. Then what happened? The dog went to ask the lion. डॉग लायन के पास जाता है और पूछता है Would you like to be my master? The lion agreed to it. और फिर वो जो लायन है वो डॉग से अग्री करता है and the dog stayed with him and served him for a long time. फिर एक बहुत लंबे टाइम तक डॉग लायन के साथ रहता है एंड अच्छी लाइफ सर्व करता है. एंड ही सर्व द लायन ऑल्सो. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेड टच द डॉग और offend him in any way. जैसे कि जो डॉग था वो लायन के साथ रहता था. The dog stayed with lion. So no animals
would dare to offend him in any way. So the dog felt his life very good and he had nothing to complain. Number 9. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. But जब एक दिन वो दोनों साथ में चले जा रहे थे रास्ते में और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप, लायन रुक जाता है। क्या सुनता है? तो वो किसी के स्ट्रिप सुनता है। अचानक से वो अपने पाँव अर्थ पे जोर से हीट करता है एंड गेव अ वेरी बिग रोअर, अ वेरी ग्रेट रोअर, जोर से गर्जना करता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो पीछे मुड़ के वापिस चलने लगता है। हरीडली, थोड़ा जल्दी से तेज चलने लगता है। What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. फिर ये सब देख के डॉग सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है। He asked the lion, anything is wrong? अचानक से पूछता है मास्टर, What's happened? क्या हुआ? I smell a man coming this way, the lion said. We would be better run for it or we will be in trouble. क्या बोलता है लायन? लायन सेड, I smell a man coming this way. मुझे ऐसी स्मेल आई कि कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, हमारे लिए अच्छा यही है कि हम यहाँ से चले जाए, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। जो लायन होते हैं बच्चों, उनको जो इंसान होते हैं उनकी स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। सो अगर कोई इंसान लायन के पास थोड़े से डिस्टेंस पे होता है तो लायन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग्स है। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू। ये सुन के जो डॉग है वो क्या बोलता है? तो अब अच्छा ये बात है तो मुझे आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा। आई विल से गुड बाय टू यू। लायन, I want a master who is stronger than anyone on the earth. What the dog had said? The dog said, I want a master who is stronger than anyone on earth. And if the lion feared with man, so it meant man was stronger than lions. तो डॉग सोच रहा है कि अगर ये लायन मैन से डर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान है, जो मैन है, वो ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उस दिन से लेके आज तक जो डॉग था वो इंसान के साथ रहने लगा एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और इंसान को मीन्स ह्यूमन बीइंग को फेथफुली सर्व करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्टोरी है वो बहुत सालों पुरानी है, बहुत सालों पहले की है। सो तब से लेके आज तक, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। सो तब से लेके आज तक जो डॉग्स हैं वो हमारे मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के मोस्ट लॉयल सर्वेंट रह चुके हैं
and knows no other master. So आप में से भी कई सारे लोगों के घर पे एज अ पेट एनिमल आप डॉग को टेम करते होंगे. सो डॉग जो है वो हमारा सबसे फेथफुल एंड लॉयल एनिमल है. The dog served us very faithfully. So here we have completed our lesson. Tomorrow we will discuss the question answers and other exercise. Bye everyone. Thank you.